Good morning. Yesterday we started with the capital structure theories and we have done three theories. One is net income approach, second one is net operating income approach, third one is traditional approach, and fourth one is that three theories we have done. Now, for these theories we have taken some common assumptions, and common assumptions kitne hai? We are having total 8 common assumptions. First, there are two type of capital. One is debt and another is equity. Second is firm is having fixed investment policy, means the total capital employed is constant. Third one is firm is having positive net income. Then all the net income will be distributed as dividend. Then there are no taxes. Then capital markets are perfect. Behavior of investors is rational. And cost of debt is less than cost of equity. Thereafter, we have learned the formulas also. We have learned the 6 formulas. First is value of firm, that is E plus D, that is value of equity plus value of debt. Then second one is value of firm, V is equal to EBIT divided by KO. Then third one is KO is equal to KD into D upon D plus E plus KE into E upon D plus E. Then after this, net income is EBIT minus interest. Then value of equity is net income divided by KE. Then the value of debt is interest divided by KD. Thereafter, we started with the net income approach, and net income approach ke liye we have taken one additional assumption, and that additional assumption is that cost of debt and cost of equity remain constant irrespective of change in capital structure. And by this theory, what we were doing, that as we increase the debt in capital structure, overall cost of capital will be coming down, and as overall cost of capital is coming down, the value of firm will be going up. जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे थे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग डाउन. And as the KO is coming down, the value of firm is going up. So this theory says, if we want to maximize the value of firm, we should maximize the debt in capital structure. Then after this, next is the net operating income approach. What this net operating income approach says, that if we increase the debt in capital structure, then the financial risk of the company will be increasing. And as the financial risk of the company is increasing, then the risk of shareholders in the company will increase. And if the risk of the shareholder is increasing, then they will be demanding higher returns. And if they are demanding higher returns, then the cost of equity will be rising. And the theory says that cost of equity will rise in such a proportion that overall cost of capital remain constant. And if the KO is constant, then the value of firm will also be constant. Is it clear now? अब इसके बाद में next one was the traditional approach. What it says, that initially once we increase the debt in capital structure, the risk perception of the shareholders about the company may not be changing. But if the debt equity ratio goes beyond a certain point, then the risk perception will change and the shareholders will be demanding higher return, due to which the cost of equity will be rising exponentially. And then further, when the debt equity ratio goes up further, then the providers of debt also thinks that company is risky and they also demand higher return, due to which the cost of debt also rises. And initially, when the cost of debt and cost of equity are constant, then this is similar to net income approach. So what is going to happen, as we will be increasing the debt in capital structure, the overall cost of capital will be coming down. Then the K is rising, the KD is constant, then KO will be stabilizing a bit. When the KD and KE both are rising, then the KO will also be rising. Therefore, there will be a point where overall cost of capital is minimum, and at that point the value of firm will be maximum. So ये हमारे पास में 3 theories आ गई हैं for the capital structure. एक चौथी theory बची हुई है, Modigliani and Miller approach,
एक्चुअल में वो डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को ही सॉल्व करने का एक या उसी का दूसरा एक्सप्लेनेशन है. नाउ टेक द एग्जांपल फॉर दिस. वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 42 है. प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6. A firm's NOI is rupees 1 lakh. Its cost of equity is 10%. Its cost of debt is 6%, and the market value of debt is rupees 5 lakhs. Find overall cost of capital and value of firm under net income approach. What would be the position of the value of debt is rupees 7 lakhs. Find K, O, S, D and V for following levels of interest cost. That is 10,000, 20,000, 30, 50, 90 and 1 lakh, where the KE is 10% and KD is 5%. यहाँ पे हमारे को किस में सॉल्व करना है? नेट इनकम अप्रोच में हमारे को यहाँ सॉल्व करना है. नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से क्या हो गया? दैट फर्म्स NOI कितना है? रुपीज 1 लाख एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%. सो KE NOI मतलब EBIT, नेट ऑपरेटिंग इनकम मींस EBIT. EBIT कितना दिया हुआ है? इज रुपीज 1 लाख. इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%. सो KE कितना दिया हुआ है? 10%. इट्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 6% एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज रुपीज 5 lakhs. Find the overall cost of capital and value of firm under net income approach. अब यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ फर्म के लिए क्या फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं? फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म इज दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट. सेकेंड फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म इज EBIT डिवाइडेड बाय KO. अब यहाँ हमारे को EBIT मालूम है, हमारे से वो क्या पूछ रहे हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. KO नहीं मालूम, KO कंप्यूट करना. अगर KO मालूम होता डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फर्म हमारे को मिल जाता था. एंड वैल्यू ऑफ फर्म अंडर नेट इनकम अप्रोच, तब हमारे को क्या वैल्यू ऑफ डेट मालूम है? यहाँ वैल्यू ऑफ डेट मालूम है. कितना है? वैल्यू ऑफ डेट इज रुपीज 5 lakhs. वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 5 lakh रुपीज इज द वैल्यू ऑफ डेट. एंड अब इसके बाद अगर हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कंप्यूट कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा ना. अगर हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट कर दिया तो हम वैल्यू ऑफ फर्म कंप्यूट कर सकते हैं. अब कैसे कंप्यूट करोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी? वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE. फॉर्मूले तो याद होने चाहिए. तो फॉर्मूले कब याद होता है? जब याद करता तभी याद होता है, उसके पहले नहीं होते. और अगर याद नहीं है फॉर्मूले, इसका एक ही रीजन है, क्या है? याद किए नहीं. जिस मोमेंट पे याद करोगे तो याद हो जाएंगे. मैंने क्लास में अब तक कम से कम 7-8 बार तो रिपीट कर दिए, पर तुमने याद करने की कोशिश करी नहीं, इसलिए याद हुए नहीं. जिस मोमेंट पे करोगे और ये सोचो कि एग्जाम के एक दिन पहले सारे के सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, तो नहीं होने वाला. जो अब नहीं हुआ वो तब भी नहीं होगा. तो कैसा थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे. एक और काम करो, जो चैप्टर कंप्लीट होता जाए उसकी समरी बनाते जाओ. ठीक है? स्मॉल नोटबुक 100 पेजेस से कम की, 100 पेजेस से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं. जो चैप्टर कंप्लीट होते जाए उन चैप्टर्स की समरी बनाते जाओ. वहां पे कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे को लगता है कि तुम्हें याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कंसेप्ट रिकॉल करने के लिए, वो सब लिखते जाओ. तो अभी समरी बनाना बहुत आसान जाएगा. जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, अब बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क में मुश्किल से 3-4 पेजेस लगेंगे. 3 पेज भी बहुत हो गए. फॉर्मूले लिखने हैं, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट लिखने, कुछ एक आध पॉइंट पर पूरा चैप्टर रिव्यू करना पड़ेगा. 3 पेज लिखोगे उसके लिए 2 घंटे लगेंगे तुम्हारे को अभी, क्योंकि पूरा का पूरा वो टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा. उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मार्क करके एक जगह पे लिखने. बट एक बार लिख दिया तो हमेशा के लिए काम हो गया ना. हमेशा मतलब एग्जाम तक के लिए. हमेशा एग्जाम थोड़ी ना देते रहेंगे.
एग्जाम तक के लिए काम हो गया, फिर हमारे एफर्ट्स बहुत बचता है। आज थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डाले तो फ्यूचर के एफर्ट्स बहुत कम हो जाता, और आखिर में हमारे को एग्जाम पास कराती है हमारी ही मेहनत। कोई टीचर किसी को पास कराता नहीं। भले ही जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा है मैं फ्लेक्स बना के लिख दूं कि उनको मार्क्स मेरी वजह से आए, बट फैक्ट इज नॉट दिस। मार्क्स उनको आए उनकी मेहनत की वजह से। मार्क्स आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करोगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई कैन मोटिवेट यू फॉर स्टडीज, मेरा 50% काम हो गया। तुम मार्क्स लेके आओगे, मेरे को सिर्फ क्या करना है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। एंड इफ यू आर मोटिवेटेड फॉर स्टडीज यू विल गेट द मार्क्स। तुम्हारे को मार्क्स आएंगे ही। तो पहली चीज है, शुरुआत करो। चैप्टर खत्म होने का मतलब वो खत्म नहीं हो गया, मैंने खत्म किया है ना, मेरे एंड से खत्म हो गया। तुम्हारे लिए तो कब खत्म होगा? रिजल्ट के बाद। एग्जाम के बाद भी नहीं, रिजल्ट के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि रिजल्ट तक एक्चुअल में 100% तो कोई भी श्योर नहीं हो पाता। जिसकी शायद फर्स्ट रैंक है वो भी 100% श्योर नहीं रहता कि क्या होने वाला है। तो कोई ना कोई पेपर में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। साइकोलॉजिकल फियर रहता ही है। हाँ, उम्मीद होती है कि हाँ मार्क्स आएंगे, बट गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो फाइनली व्हाट इज द थिंग कि खत्म कब हुआ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से? रिजल्ट के बाद में। तो उतने तक की तो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना। स्टार्ट वर्किंग टुडे। टाइम ना तो ज्यादा है ना कम है, टाइम सफिशिएंट है अगर तुम यूटिलाइज करो तो, और यूटिलाइज नहीं करो तो कभी भी टाइम पूरा होता नहीं। Look, work extend itself to the time available. एग्जाम के एक दिन पहले 12 घंटे में सिलेबस रिवाइज हो जाता है, और आज की डेट में एक चैप्टर 12 घंटे में रिवाइज होगा नहीं होगा। There is a difference. We are having potential, but do we utilize that? Answer is no. Don't. सब में पोटेंशियल है, सब में पोटेंशियल है रैंक में आने का। ऐसे पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, सब में पोटेंशियल है रैंक में आने का, बट मैक्सिमम इसलिए रैंक में नहीं आएंगे क्योंकि दे देमसेल्फ डोंट बिलीव इन देमसेल्फ। खुद पे विश्वास नहीं है कि वो रैंक में आ सकता है। अब तुम्हारे कोई विश्वास नहीं होगा तो किसी और को कैसे होगा? इंस्टीट्यूट को कैसे होगा? तो पहला भरोसा तो खुद पे होता है ना। तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस खुद में ही डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस तभी आता जब मेहनत करता, और मेहनत कल से नहीं, मेहनत आज से शुरू होनी चाहिए। जो कल से मेहनत करता हूं कभी नहीं करता, उनका कल ही आता रहता एंड शुरुआत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीजें शुरू होनी चाहिए। इसलिए कैसा होता ना, ज्योतिष में भी काम की शुरुआत इंपॉर्टेंट होती है, और पढ़ाई के लिए सारे मुहूर्त अच्छे होते हैं। आज का मुहूर्त सबसे अच्छा है अगर शुरू करना है। कल भी अगर कल से शुरू करो तो कल का मुहूर्त भी, जिस दिन सोच रहे हो उस दिन का मुहूर्त सबसे अच्छा पढ़ाई के लिए। आज से अच्छा मुहूर्त कोई नहीं होता। सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। एक चैप्टर जो खत्म हो गया उसकी समरी बना लो। आई नो दैट यू आर बिजी अ लॉट, बट वो तो रहना ही है। सक्सेसफुल पर्सन्स आर ऑलवेज बिजी। मोदी के पास टाइम नहीं होता, राहुल गांधी के पास होता है। डिफरेंस है। सो व्हाट यू वांट टू बी? तुम बिजी होना चाहते हो या खाली रहना चाहते हो? तुम्हारे को क्या बनना है? इट इज अप टू यू। नाउ अब यहां पे क्या करना होगा हमारे को? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? नेट इनकम डिवाइडेड बाय के। तो क्या हमारे को नेट इनकम का फॉर्मूला मालूम है?
नेट इनकम इज EBIT माइनस इंटरेस्ट। कल सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए और मैं इंडिविजुअली पूछूंगा। जो नहीं बताएगा फॉर्मूला उसको 5 बार मेरे साथ में फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा और क्लास खत्म होने के पहले एक बार फॉर्मूला वापस से बताना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं, कोई बहाना नहीं। कल फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, अगर याद नहीं है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि याद किए नहीं, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। सो यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज बाय टुमारो। एक बार हम 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद में एक टेस्ट रख लेंगे। ये इसके बाद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल और खत्म हो जाए तो ये एक सेट ऑफ चैप्टर्स खत्म हो जाता। देन वी विल बी हैविंग 1 टेस्ट, और टेस्ट सबके लिए कंपल्सरी है। कुछ भी करो, पेपर लिखना ही है, जैसा भी लिख के, तो तब हमारे को थोड़ा सा रियलाइजेशन होता। जब तक असेसमेंट नहीं होता तब तक हम सोचते रहते हैं हम तो पढ़ रहे हैं, बट आउटपुट जब दिखाई देगा तभी तुम्हारे को समझ में आएगा कि हमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। नाउ अब यहां पे हमारे को क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि डेट की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी मालूम है, तो अगर हम इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें तो हम वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? दिस इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय के। नेट इनकम को अब हमारे को कंप्यूट करना पड़ेगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। क्या हमारे को EBIT मालूम है? मालूम है। उन्होंने पहली लाइन में दिया हुआ है नेट ऑपरेटिंग NOI इज ₹1 लाख, मीन्स EBIT इज ₹1 लाख। अब क्या हम इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकते हैं ना। डेट की वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, तो उससे हमारा इंटरेस्ट निकल गया, तो हमारे पास नेट इनकम आ गया। नेट इनकम KE दिया हुआ है 10%, उन्होंने नेट इनकम डिवाइड बाय KE करा तो हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें अगर हम वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ फॉर A part, computation of value of firm, computation of value of firm and overall cost of capital, in bracket write Q. Computation of value of firm and overall cost of capital Q. अब क्या करना है? हमारे पास में नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI दिया हुआ है कितना रुपीस? 1 लाख। यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम इन ब्रैकेट राइट EBIT इज ₹1 लाख। EBIT इज ₹1 लाख। अब इसमें से हमारे को लेस कर देना है क्या? लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज 5 lakhs का 6% is 30,000. So from this we will be getting net income is ₹70,000. Net income is ₹70,000 and the cost of equity KE is given how much? 10%. KE is given 10%. So can we find out the value of equity? So right, therefore value of equity. This is net income divided by KE, that is 70,000 divided by 10%. This comes to ₹7 lakhs. तो हमारे पास में वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया कितना? 7 lakhs. Do we know the value of debt? Value of debt is given, कितना दिया हुआ है वैल्यू ऑफ डेट? 5 lakhs.
So from this we get value of firm is 12 lakhs. Value of firm is rupees 12 lakhs. Then a value of equity, this was E, value of debt is D, and value of firm V is equal to E plus D. Then अब वापस से हमारे को क्या कंप्यूट करना है? वी हैव टू कंप्यूट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमने क्या सीखा था? फॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला V इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय KO. इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय KO. तो अगर मेरे को KO की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे? दिस इज EBIT divided by V, and if you have to find out it in percentage, so into 100 कर दिया, so you'll be getting the answer in percentage. Everybody has got this. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Right, overall cost of capital, overall cost of capital in bracket right KO is equal to EBIT divided by V into 100. Overall cost of capital KO is EBIT divided by V into 100. Now this is EBIT कितना है? 1 lakh divided by value of firm is now 12 lakhs into 100. This comes how much? 8.33%. This is 8.33%. Then after this, next B part, find what would be the position if the value of debt is rupees 7 lakhs. Look, under net income approach हमारा एक assumption है, additional assumption, that the cost of debt and cost of equity remain constant irrespective of change in capital structure. It means even if the debt increases to rupees 7 lakhs, the cost of debt will remain same at 6% and the cost of equity will remain same at 10%. So what will change? KO will change and value of firm will change. Is it clear? तो एक काम करते हैं, नोट लिखते हैं, then we solve it. Write the note. Write the note. As per net income approach, net income approach, net income approach, cost of debt and cost of equity, cost of debt and cost of equity remain constant irrespective of change in capital structure. Therefore, cost of debt in bracket right KD will be 6% and cost of equity in bracket right KE will be 10% even though debt increases to rupees 7 lakhs. Even though debt increases to rupees 7 lakhs.
तो अगर हमारा डेट 5 लाख से बढ़ के अगर 7 लाख भी हो गया तब भी केडी कितना रहेगा 6% एंड केई कितना रहेगा 10%. ये अजम्पशन है, एडिशनल अजम्पशन है ऑफ नेट इनकम अप्रोच. एवरीबडी हैज गॉट दिस नाउ. अब यहां पे हमारे को वापस से क्या कंप्यूट करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इफ द डेट इज इंक्रीजिंग टू रुपीज 7 lakhs. So write statement for computation of value of firm and overall cost of capital in bracket Q. Rupees. It is we have to compute this value. अब यहाँ पे जब हम सोच के देखना तब यहाँ क्या होगा. तो एक हमने कल कंसेप्ट सीखा था, क्या EBIT चेंज होता विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर? नहीं चेंज होता. EBIT विल रिमेन सेम. EBIT विल रिमेन सेम. तो अगर पहले हमारा EBIT 1 लाख रुपीज था तो अब भी वो EBIT कितना रहेगा? 1 लाख रुपीज ही रहेगा. सो राइट नेट ऑपरेटिंग इनकम, net operating income in bracket EBIT is rupees 1 lakh, then less interest. अब डेट है कितना? डेट है रुपीज 7 lakhs. But the rate of interest or cost of debt is 6% only. So 7 lakhs का 6% comes how much? 42,000. This is 42,000. So इससे हमारे पास क्या आ गया? We got here is net income is 58,000. The net income comes is 58,000. Then cost of equity in bracket right KE is 10%. It will also remain same. So from this we get here is value of equity in bracket right E is equal to net income divided by KE. This is 58,000 divided by 10%. This comes to rupees 5,80,000. This is 5,80,000. Then इसमें हम ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ डेट. Add value of debt in bracket right D is how much? Is rupees 7 lakhs. तो इससे हमारे पास क्या आ गया? So right therefore value of firm is 12,80,000. This is V is equal to E plus D. This is 12,80,000. क्या हम अब यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट कर सकते हैं? सो राइट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ब्रैकेट राइट KO इज इक्वल टू EBIT divided by V into 100. This is 1 lakh divided by 12,80,000 into 100. This comes to 8125%. 7.8125%. Look, whether we are getting the result as per the net income approach.
नेट इनकम अप्रोच हमारे को क्या बोलती है, एज यू इंक्रीज द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी कमिंग डाउन. पहले जब हमारा डेट 5 लाख था, देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज हाउ मच, इट वाज 8.33%. And now once you are increasing the debt in capital structure, your overall cost of capital is falling down to 7.8125%. पहले 8.33% था, उससे 7.8125% हो गया. So overall cost of capital कम हो गया and the value of firm is increasing. Value of firm पहले कितना था, it was rupees 12 lakhs, अब कितना हो गया 12,80,000. So we are getting the result as per net income approach. Now the C part. For C part, what they're saying, find KO. KO means overall cost of capital. S, some books use the symbol S for the share or equity. ये S जो यूज किया हुआ है ये शेयर या फिर इक्विटी के लिए ही यूज करा हुआ है. By default we use the symbol E for the equity. By default we are using the symbol E for the equity, but some books they use symbol S also. Is it clear? Now, तो हमारे को क्या कंप्यूट करना, फाइंड KO means overall cost of capital, S means the value of equity, then D is value of debt and V is value of firm. For following level of interest cost 10, 20, 30, 50, 90, 1 lakh, where KE is 10% and KD is 5%. एक्चुअल में यहाँ पे उन्होंने KD चेंज करा है, ये दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट. पिछले पार्ट का डायरेक्ट लिंक नहीं लिया हुआ है उन्होंने, बट अगर KD 5% हो तो सब जगह 5% रहेगा, इसके जितने भी पार्ट्स रहेंगे उसमें 5% रहेगा. यहाँ पे थोड़ा सा डेटा उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जा रही है. 5% 6% लोगे तो थोड़ा सा ऑड फिगर आती है, उन्होंने 5% करके ले लिया. दैट इज हाउ इट इज टू बी डन. नाउ राइट statement for computation of KO, S, D and V at different level of interest cost. At different level of interest cost. अब यहाँ पे हम कॉलम्स क्या लेंगे, कॉलम्स वी आर गोइंग टू टेक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, देन इंटरेस्ट कॉस्ट. उसमें हमारे पास में टोटल कितने 10, 20, 30, 50, 90 एंड 60. ठीक. सो यहाँ पे कॉलम्स आ गए हमारे पास में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड देन इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट. अब यहां पे हम इंटरेस्ट कॉस्ट क्या ले रहे हैं, दिस इज 10,000, 10,000, देन 20,000, देन 30,000, देन 50,000, देन 90,000 and 1 lakh. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड देन इंटरेस्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट कॉस्ट में हम कॉलम ले रहे हैं 10, 20, 30, 50, 90 एंड 1 lakh. नाउ अब यहां हम पहले क्या करता है, वी कंप्यूट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कंप्यूट करा जा सकता है, इट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE, और अगर KE 10% तो 10% रहेगा फॉर ऑल द लेवल्स. इज दिस क्लियर, फॉर एनी कैपिटल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे इसके लिए हमारे को क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, नेट इनकम. नेट इनकम के लिए हम क्या लेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट. क्या हमारे को EBIT मालूम है, EBIT इज रुपीज 1 लाख. इंटरेस्ट हमारे को दिया हुआ है, माइनस करोगे यू विल बी गेटिंग द नेट इनकम. दैट डिवाइडेड बाय KE, KE इज द 10%, you will be getting the value of equity. So write A, value of equity, value of equity, and here
First we are taking is EBIT. EBIT कितना? रुपीज 1 lakh. EBIT is rupees 1 lakh. And this is 1 lakh for all the columns. अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? We are going to deduct is interest. Then less interest. Interest is 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 90,000 and 1 lakh. From this we get what is net income. Right, therefore net income net income कितना हो जाएगा? 1 लाख में से 10,000 माइनस करा तो कितना आ गया? 90,000. 1 lakh में से 20,000 minus करा, so we got is 80,000. Then 70,000. Then 50,000. Then 10,000. And this is nil. Do we know the cost of equity? A value of equity कैसा आना? Net income divided by K. Then write cost of equity. Cost of equity in bracket write K is 10% and will remain constant irrespective of change in capital structure. Now from this we can find out the value of equity. So write therefore value of equity. And this value of equity is net income divided by K. Value of equity is net income divided by K. And 90,000 divided by 10%. 90,000 divided by 10%. How much it comes to? 9 lakhs, this is 8 lakhs, this is 7 lakhs, this is 5 lakhs, this is 1 lakh and this is nil. Hope everybody got this. अब हमारे को क्या चाहिए? We need to have the value of debt. Value of debt कैसे compute कर सकते हो? This is interest divided by KD. Interest मालूम है हमारे को? We know that. Now write after this B value of debt. Value of debt. अब यहां पे हम वैल्यू ऑफ डेट कैसे कंप्यूट करेंगे? वैल्यू ऑफ डेट इसके लिए हमारे पास में है इंटरेस्ट. सो राइट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 90,000 and 1 lakh. Then cost of debt KD. KD is 5%. Now, can we find out the value of debt? Value of debt, this is interest divided by KD. This is interest divided by KD. And
10,000 divided by 5% कितना आ गया? 10,000 divided by 5% is 2 lakh. So यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ डेट आ गया कितना? 2 lakh. This is 4 lakh. This is 6 lakhs. This is 10 lakhs. This is 18 lakhs. And this is 20 lakhs. क्या कर रहे हैं हम? Interest divided by KD. 10,000 divided by 5% is 2 lakhs. 20,000 divided by 5% is 4 lakhs. 30,000 divided by 5% is 6 lakhs and so on. Is it clear then? अब हमारे पास आ गया value of debt. Can we compute the value of firm? Now write, see, value of firm. Value of firm. Now value of firm V is equal to E plus D. This is A plus B. A में क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला है. B में हमने वैल्यू ऑफ डेट कंप्यूट करा है. नाउ 9 lakhs plus 2 lakh. 9 lakh plus 2 lakh. This is how much? 11 lakh. वैल्यू ऑफ फर्म आ गया हमारे पास 11 lakh. Then 8 lakh plus 4 lakh. This comes to value of firm is 12 lakhs. Then 7 lakh plus 6 lakhs. This comes to 13 lakhs. Then 5 lakhs plus 10 lakhs. This comes to 15 lakhs. Then 1 lakh plus 18 lakhs. This is 19 lakhs. And here it is 20 lakhs. This is 20 lakhs. Then अब हमारे को क्या कंप्यूट करना है? We have to compute the overall cost of capital. Overall cost of capital KO हम कैसे कंप्यूट करेंगे? This is EBIT divided by V. EBIT हमारे को मालूम है एंड वैल्यू ऑफ फर्म अभी हमने कंप्यूट किया है. EBIT कितना है? इज रुपीज 1 lakh. Then write after this D overall cost of capital in bracket write KO is equal to EBIT divided by V into 100. Overall cost of capital, this is EBIT divided by V into 100. Now, how much is the EBIT? EBIT कितना है? 1 lakh. EBIT is 1 lakh divided by value of firm is 11 lakhs into 100. कितना आ गया? 9.09%. 9.09%. कैसे कंप्यूट कर रहा है? 1 lakh divided by 11 lakhs into 100. This is 9.09%. Then यहाँ पे 1 lakh divided by 12 lakhs into 100. 1 lakh divided by 12 lakhs into 100. कितना आया? 8.33%. ऐसे ही 1 lakh डिवाइड बाय 13 lakhs कितना है? ये 7.69%. कंप्यूट करो वैल्यूज. 7.69 सही है वो? अच्छा, फिर इसके बाद में 6.67%. देन 5.45%.
to 6% and then 5%. Hope everybody has got this. अब यहां पे सोच के देखो, क्या हमारा थियरी के अकॉर्डिंग है रिजल्ट? इट इज देयर. क्या कर रहे हैं हम? जैसे जैसे डेट बढ़ा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, पहले डेट था 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख, फिर 10 लाख, फिर 18 लाख, फिर 20 लाख. जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या होना चाहिए? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड हैव कम डाउन. इज इट कमिंग डाउन? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग डाउन. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कम होता जा रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंक्रीजिंग. एंड वेयर द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम वेयर द डेट इज मैक्सिमम. जैसे जैसे डेट बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता जा रहा है. इज इट क्लियर? एवरीबडी गॉट दिस? बट दिस थियरी सीम्स टू बी बिट इलॉजिकल. मतलब ये थियरी क्या बताती है कि अगर तुम्हारे को वैल्यू बढ़ानी है, वेल्थ बढ़ानी है, तो और लोन लो. जितना ज्यादा उधार लोगे उतनी वैल्यू तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी. बट हमने तो ऐसा सीखा नहीं था. हमारे को तो ये बताया गया था उधार लिया तो अच्छा नहीं होता. बट एज सच आज के कंसेप्ट के हिसाब से लोन लेना उतना बुरा भी नहीं है. तो सारी जिंदगी आजकल तो उधार पे ही चलती है. तो क्रेडिट कार्ड भी तो उधार ही है. अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो ये भी तो उधार ही ले रहे हो ना. इनडायरेक्टली तो लोन ही लिया. एंड 20th सेंचुरी, पिछली सेंचुरी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेंशन थी क्रेडिट कार्ड. इसने दुनिया का कंजम्पशन पैटर्न बदल दिया. पहले लोग खर्च करते थे कमाने के बाद, अब खर्च करते हैं कमाने के पहले. ठीक? पहले लोग रिटायर होके घर बनवाते थे, अब जॉब मिलते ही फ्लैट खरीद लेते. डिफरेंस है. there's a डिफरेंस. इससे क्या बढ़ रहा है? डिमांड बढ़ रही है मार्केट में. आज की डेट में लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, खरीदने कुछ और जाते हैं, खरीद के कुछ और ले आते हैं. होता है क्या? हो रहा है ना, बहुत सारे केसेस में होता है ना. खरीदने गए थे टीवी, खरीद के लिया है म्यूजिक सिस्टम. ठीक? और या फिर कुछ भी खरीदने, छोटी सी चीज खरीदने गए थे, ईयरफोन खरीदने गए थे, मोबाइल के लिए दूसरा मोबाइल ही खरीद के लिया है. पेमेंट की चिंता नहीं, क्रेडिट कार्ड है ना जेब में, कौन सा अभी पैसा देना, अभी चीज पसंद आई तो अभी खरीद लो, बाद में पेमेंट का देखेंगे. सो लोन लेना उतना बुरा भी नहीं है, बट इतना अच्छा भी नहीं है कि लोन लेते ही चले जाओ. कहीं तो भी फ्लॉ है इस थियरी में. और कहां फ्लॉ है इस थियरी में? इन द assumption itself. What the assumption is that the cost of debt and cost of equity remain constant irrespective of change in capital structure. But होगा क्या practically? As you will be increasing the debt in capital structure, financial risk of the company will be increasing, and as the financial risk of company is increasing, then risk of shareholder in the company will also increase, due to which the cost of equity will not remain constant. And here is the next theory. Next theory हमारी क्या थी? That is net operating income approach. हमारे पास net operating income approach में हमने क्या सीखा था कि जैसे जैसे तुम डेट बढ़ाओगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमारा केओ बढ़ेगा, केई बढ़ेगा, एंड केई कितने से बढ़ेगा? सो दैट द केओ रिमेन कांस्टेंट. मीन्स हम कैपिटल स्ट्रक्चर बदल के वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं कर सकते. अगर वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना है, डू ईदर ऑफ द टू थिंग्स. वन, चेंज द बिजनेस, डू मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस, or change the capital employed, invest more money in the business, then you will be able to increase the value of firm. But सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर बदल देने से हम वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं कर सकते. दैट इज नॉट पॉसिबल. एवरीबडी हैज गॉट दिस. नाउ वी कम टू प्रॉब्लम नंबर 7. प्रॉब्लम नंबर 7 पे आता है. अब क्या दिया हुआ है? A firm earns NOI of rupees 1 lakh.
its KO is 10% and debt is rupees 5 lakhs and KD is 6%. फॉर्म कितना NOI मतलब EBIT कितना है इज रुपीज 1 लाख. पिछले प्रॉब्लम में उन्होंने KE दिया हुआ था, इस प्रॉब्लम में उन्होंने KO दिया है कितना 10% and the debt is rupees 5 lakhs and the KD is 6%. So the cost of debt is 6%. Find the cost of equity, value of firm under net operating income approach. तो यहां पे अब हमारे को क्या करना होगा, राइट, computation of value of firm and cost of equity. Computation of value of firm and cost of equity. अब यहाँ पे how the things are going to be. अब हमारे को वैल्यू ऑफ फर्म निकालना, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, दिस इज EBIT डिवाइड बाय KO. क्या इस प्रॉब्लम में हमारे को EBIT मालूम है? यस, कितना है 1 लाख रुपीज. क्या KO मालूम है? यस, इट इज नोन. उन्होंने पहली लाइन में दिया हुआ दिस इज 10%. सो 1 लाख डिवाइड बाय 10% वैल्यू ऑफ फर्म तो आ गया हमारे पास में 10 lakhs. अब यहाँ पे इसके बाद में हमारे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा. अब यहाँ फॉर्मूला हमारे को मालूम है वैल्यू ऑफ इक्विटी का. वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE. वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE. तो अगर मेरे को KE चाहिए, सो दिस इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. If you multiply this with 100, you will be getting the answer in percentage. अब यहाँ क्या हो गया, अब अगर हमारे को KE, वैल्यू ऑफ फर्म तो निकल गया, अगर हमारे को KE निकालना तो हमारे को क्या चाहिए होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी. क्या हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ गया तो उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा. तो वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी. क्या हम नेट इनकम कंप्यूट कर सकते हैं? इट कैन बी कंप्यूटेड. नेट इनकम कैसे आएगा? दिस इज EBIT माइनस इंटरेस्ट. सो दिस इज EBIT माइनस इंटरेस्ट. यू विल बी गेटिंग द नेट इनकम एंड नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो यहाँ पे कहां से शुरुआत करेंगे? EBIT से, राइट. नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट operating income, this is EBIT is rupees 1 lakh. EBIT is rupees 1 lakh. Then write overall cost of capital, overall cost of capital, in bracket write KO is 10%. Overall cost of capital KO is 10%. Now from this can we compute the value of firm? It can be computed. So write value of firm, value of firm, in bracket write V is equal to EBIT divided by KO. This is 1 lakh divided by 10%. This comes to rupees 10 lakhs. This is rupees 10 lakhs. अब क्या करना होगा, हमारे को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है. तो अगर हम इस वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा. सो राइट लेस वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट इज हाउ मच, इज रुपीज 5 lakhs.
So from this we get the value of equity. Value of equity. This is E. कितना आ गया? 5 lakhs. अब हमें क्या चाहिए रहेगा? We need to have net income, and how we compute the net income? It is EBIT minus interest. So write net income is EBIT minus interest, and EBIT कितना है? 1 लाख. इंटरेस्ट आ जाएगा, डेट है हमारा कितना? 5 लाख, and the rate of interest is 6%. That comes to 30,000. So अगर हम 1 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? That comes to rupees 70,000. So यहाँ हमारे पास नेट इनकम आ जाता है rupees 70,000. नेट इनकम इज rupees 70,000. Now अब क्या इसके बाद में? राइट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Cost of equity. A cost of equity is net income divided by value of equity. So this is net income divided by value of equity into 100. This is 70,000 divided by 5 lakhs into 100. 70,000 divided by 5 lakhs into 100, this comes to 14%. This comes to 14%. Hope this is clear. Everybody has got this. Now, अब यहाँ पे cost of equity आ गया and value of firm आ गया. Then they are asking B part. B part में उन्होंने हमारे से क्या पूछा? They're asking find the V, that is the value of firm, and KE, that is the cost of equity. If debt is rupees 7 lakhs, will your answer differ? Work under NOI theory. So हमारे को net operating income approach में सोचना है. Then what is going to be there? As per net operating income approach, KO remains constant. As per net operating income approach, KO remains constant. And what changes is KE. नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से KD एंड KE कांस्टेंट रहता है और क्या बदलता है? KO. बट यहाँ पे वो क्या बोलता है कि KE बढ़ जाएगा और KE कितने से बढ़ेगा? सो दैट इट इज ऑफसेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चीपर डेट. सस्ते डेट का जितना फायदा होना था वो सारा का सारा फायदा खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. KO विल बी कांस्टेंट. तो अगर मैं डेट को बढ़ा के 5 लाख से 7 लाख कर दूं तो KO कितना रहेगा? 10% ही रहेगा. अगर पहले 10% था तो अभी भी 10% ही रहने वाला है. तो नोट लिख लेते हैं एंड देन वी राइट द आंसर. क्योंकि एग्जाम में नोट बोर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर दो. टाइम बचाओ. वहां पे इतना टाइम होता नहीं कि नोट्स लिखें, ये सब करें. इस चक्कर में पढ़ोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा एंड नोट कोई पढ़ता भी नहीं. This is also a fact कि एग्जामिनर के पास में 400 आंसर शीट चेक करने को है. कैसे तो बेचारा, और बहुत बोरिंग काम होता पेपर चेक करना. तुम्हारे को बोलूंगी कल पेज नंबर 43 10 बार पढ़ के आओ, गारंटी है एक भी पढ़ के नहीं आएगा. अब एग्जामिनर को तुम बोल रहे हो कि पेज नंबर 43 400 बार पढ़ो, पढ़ेगा? वो भी तो हमारे में से गया ना. तो अब क्या होने वाला है? क्या वो 400 टाइम्स ढंग से पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा. थोड़े टाइम में आंसर याद हो जाता है. वो खटाखट आंसर देखा, मार्क्स दिए, आंसर देखा, मार्क्स दिए, आगे बढ़ गया. क्या सही होना चाहिए? आंसर सही होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. हाँ, पर पहले 10 से 15 आंसर शीट ढंग से चेक करता है. तुम किधर हो? पहले 10-15 में हो
कि बाद के 10-15 में हो, तो वहां पे मैटर करता है। ये किस्मत है, ये किस्मत है। इसको वो जो तुम्हारी किस्मत में होगा उस हिसाब से है। बट ऑन एन एवरेज पहले 10-15 में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 15 डिवाइड बाय 400 है, और बाद में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 15 के बाद में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी, इनपुट आउटपुट रेशियो देख के काम करना मेरे को। टाइम मैटर्स, क्योंकि यहां पे क्या होता है, पेपर लेंदी होता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पेपर खत्म करना अपने आप में अचीवमेंट है, 100 मार्क्स का पेपर खत्म करना। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर आते हुए भी खत्म नहीं कर पाते क्योंकि स्पीड उतनी नहीं होती। सो इसलिए ये सब जो हम नोट लिख रहे हैं ये हमारे रेफरेंस के लिए, हम तो पढ़ेंगे ना इनको, एग्जामिनर पढ़े ना पढ़े हम तो पढ़ने वाले हैं। बाद में कंफ्यूजन्स नहीं आने चाहिए एंड चीजें, क्योंकि क्या होता है रिवाइज करते टाइम पे तब तकलीफ होती है। एक बार 2-3 महीने का गैप होगा, जब तक ये बैच खत्म होगा ये सब चीजें तुम्हारे को वापस से नई दिखने लगेंगी। दोबारा नोटबुक पलट के देखोगे ना, सब नया दिखाई देगा, नहीं ध्यान रहता। दिस इज अ फैक्ट, नहीं ध्यान रहता। तो अब क्या हुआ, 6 महीने बाद पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ही सब्जेक्ट ही नया हो गया। तो उसके लिए हम नोट लिख रहे हैं, उसके लिए नोट लिख रहे हैं। अदरवाइज इन सब नोट की एग्जाम में जरूरत नहीं है। ठीक, राइट द नोट। राइट as per net operating income approach, overall cost of capital in bracket write KO remain constant irrespective of change in capital structure, irrespective of change in capital structure. Therefore, KO will remain 10% even though debt increases to rupees 7 lakhs. Even though debt increases to rupees 7 lakhs. तब यहाँ क्या हो जाएगा? अब क्या EBIT बदला? नहीं बदला। क्या KO बदला? नहीं बदला। तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम। So write net operating income in bracket write EBIT is rupees 1 lakh, then overall cost of capital in bracket write KO, overall cost of capital in bracket write KO is 10%. Right, therefore value of firm in bracket write V is equal to EBIT divided by KO. This is 1 lakh divided by 10%. This comes to rupees 10 lakhs. This is rupees 10 lakhs. अब इसके बाद हमारे को क्या करना है? हमारे को वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ डेट इसमें से माइनस कर देंगे। सो राइट लेस
value of debt is rupees 7 lakhs. So from this we get is the value of equity. Value of equity is 3 lakhs. 3 lakhs. अब क्या करना? अब हमारे को चाहिए क्या? नेट इनकम. वी वांट नेट इनकम. नेट इनकम कैसे आएगा? फॉर्मूला रिमेन सेम. दिस इज EBIT माइनस इंटरेस्ट. सो राइट नेट इनकम. नेट इनकम. Net income is EBIT minus interest. EBIT minus interest. And EBIT कितना है? 1 lakh. Minus interest. Debt है rupees 7 lakhs and rate of interest is 6%. 7 lakhs का 6% comes to 42,000. And 1 lakh में से 42,000 माइनस करा, दिस कम्स टू रुपीज 58,000. 58,000. कैन वी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? फिर बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए. जैसे जैसे डेट बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगी, शेयर होल्डर विल बी डिमांडिंग मोर रिटर्न, सो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शुड इंक्रीज. सो राइट cost of equity in bracket KE is equal to net income divided by value of equity into 100. Cost of equity KE is equal to net income divided by value of equity into 100. And this is 58,000 divided by 3 lakhs into 100. 58,000 divided by 3 lakhs into 100. 19.33%. लोग हमने डेट बढ़ाया तो शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ गई और उसने रिटर्न ज्यादा डिमांड किया एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज राइजिंग. कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा तो कितने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया? सो दैट इट इज नलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ चीपर डेट. डेट अभी भी सस्ता है बट वो सस्ते डेट का जो फायदा है वो खत्म हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से. इज दिस क्लियर? देन नाउ द सी पार्ट. व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड KE, D, S and V for following levels of interest cost under NOI approach, and the interest costs are 10, 20, 25, 35 and 45,000 where KO is 10% and the KD is 5%. Under net operating income approach, KO remain constant and this KO will remain constant at 10%. KD is also constant, that will be at 5%. तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? क्या निकालना है? KE, वैल्यू ऑफ डेट, S इज द वैल्यू ऑफ शेयर और इक्विटी, देन V दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म. तो कहां से प्रोसीड करोगे? जैसा अभी कर रहे थे, पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, फिर वैल्यू ऑफ डेट निकालो. वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा. वापस से नेट इनकम निकालो, नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, यू विल बी गेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. So right for C part, computation of KE, D, S and V at different level of interest cost. Computation of KE, D, S and V at different levels of interest cost. तो कॉलम्स क्या आ जाएंगे हमारे पास में? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर,
particulars, and then interest cost. Interest cost अब हमारे पास है कितनी? This is 10,000. Then 20,000. Then 25,000. Then 35,000 and 45,000. Draw Carlo statement. Now, अब यहां पे पहला हम कंप्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म विल बी EBIT डिवाइडेड बाय KO. तो यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म, and here write EBIT. EBIT कितना है? 1 lakh. EBIT is rupees 1 lakh, and this is 1 lakh for all the levels. हमने पहले ही सीखा था that EBIT remain constant irrespective of change in capital structure. अब इसमें से क्या करेंगे? लेस कर देंगे. Sorry, then we are having overall cost of capital. Overall cost of capital in bracket write KO. उन्होंने KO कितना दिया हुआ है? 10%, and this 10% will remain constant. So this will be 10% everywhere. This is 10% everywhere. Now, can we compute the value of firm? So write value of firm, value of firm, in bracket write V is equal to EBIT divided by KO. EBIT divided by KO. EBIT कितना? 1 lakh. KO कितना? 10%. So 1 lakh divided by 10% कितना आ जाएगा? This is 10 lakhs, and this will be 10 lakhs everywhere. This is 10 lakhs everywhere. This is 10 lakhs everywhere. अब ये आ गया हमारे पास में वैल्यू ऑफ फर्म, एंड एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच KO remains constant, so the value of firm is constant. What this series says that the value of firm is independent of capital structure. Is this point clear? Now, अब हमारे को क्या compute करना है? Next we have to compute is the value of debt. So write B, value of debt, value of debt, value of debt, and the value of debt कैसे कंप्यूट करोगे? यहां पे इंटरेस्ट है हमारे पास में, इंटरेस्ट इज 10,000, इंटरेस्ट इज 10,000, 20,000, 25,000, 35,000 and 45,000. Then this divided by cost of debt. So cost of debt, this is KD, is 5%, and this is 5% for all. 5% for all.
So from this we get the value of firm. Value of firm V is equal to I upon KD. Value of firm V is equal to interest divided by KD. Now this is 10,000 divided by 5%. 10,000 divided by 5%, बताओ कितना आ गया? This comes to, sorry, value of debt, हाँ, sorry, ये value of debt फॉर्म लिख दिया. Value of debt, this is D is equal to interest divided by KD. Value of debt, interest divided by KD. So 10,000 divided by 5%, कितना आ गया? This is 2 lakh. This is 4 lakh. This is 5 lakh. This is 7 lakh. This is 9 lakh. अब क्या हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कंप्यूट कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट. तो यहाँ पे नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज E is equal to V minus T. Value of firm minus value of debt. तो यहां पे how much is the value of firm in first scenario? First scenario में value of firm is 10 lakhs and the value of debt is 2 lakhs. So this comes to 8 lakhs. Then 10 lakh में से 6 lakhs 4 lakh minus कर दो, you get is 6 lakhs. 10 lakh में से 5 lakh minus करा, you get is 5 lakh. Then this is 3 lakh. This is 1 lakh. Hope everybody has got this. Now what to be done? अब इसके बाद में हमारे पास में आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी. अब क्या हम यहाँ नेट इनकम कंप्यूट कर सकते हैं? नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो राइट D net income. Net income. अब ये net income हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं? We are taking EBIT. EBIT is rupees 1 lakh. Look, एग्जाम में डायरेक्टली भी कर सकते हो. Now this is 1 lakh. एंड इसमें से लेस कर दिया हमने क्या? इंटरेस्ट. लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 and 45,000. And from this we have got is net income. So right, therefore net income, बताओ कितना आ जाएगा? 90,000, 80,000, 70,000, 65,000 and 55,000. यह आ गया हमारे पास में नेट इनकम. अब क्या हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट कर सकते? कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE विल बी इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. थर्ड कॉलम में सॉरी ये 25,000. This is
25,000, तो ये कितना है 75,000। हाँ, अब यहां पे नेट इनकम आ गया। नाउ कैन वी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? सो राइट, cost of equity. Cost of equity K is equal to net income divided by value of equity into 100. K is equal to net income divided by value of equity into 100. Net income is 90,000. Divided by value of equity is 8 lakhs. 8 lakhs into 100 कितना आ गया? 11.25%. This is 80,000 divided by 6 lakhs into 100. This is 13.33%. Then this is 75,000 divided by 5 lakhs into 100, 15%. Then यहाँ कितना आ जाएगा? 65,000 divided by 3 lakhs into 100, 21.67%. 21.67%, and this is 55,000 divided by 1 lakh into 100, 55%. 55%. Are we getting the result as per the net operating income approach? क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इंक्रीजिंग, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने से इंक्रीज हो रही है? सो दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इज आल्सो कांस्टेंट हियर. इज इट क्लियर? रिमेंबर, ये सारा का सारा खेल अजम्पशंस का है. तुम अजम्पशन बदलो, थ्योरी बदल जाती है. इज दिस पॉइंट क्लियर? जैसे ही तुमने नेट इनकम अप्रोच का अजम्पशन बदल दिया, वो थ्योरी बदल गई. तुमने क्या अजम्पशन लिया, इसलिए अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही थ्योरी आ रही है. बिल्कुल उलट थ्योरी आ जाती है अगर मैं उसको सोचने का तरीका बदल दूं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में. इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे पास में जो थर्ड थ्योरी थी, दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे को क्या बताती है कि शुरुआत में जब हम डेट बढ़ाते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो रिस्क परसेप्शन ऑफ द शेयर होल्डर अबाउट द कंपनी डज नॉट चेंज. तो अब यहां पे क्या होगा? जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे थे, ये कंप्लीट हो गया सबका. नाउ व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, व्हाट इट सेज दैट इनिशियली वंस यू विल बी इंक्रीजिंग द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क परसेप्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स अबाउट द कंपनी मे नॉट बी चेंजिंग. अब अगर रिस्क परसेप्शन नहीं बदलेगा तो शुरुआत में KD and KE will remain constant. Thereafter, when the debt equity ratio goes beyond a certain point, then the risk perception of the shareholder change. और जब risk perception बदलता है, then the KE will be increasing. And beyond a certain point, the risk perception of the providers of debt will also be changing. And if their risk perception is changing, then they will be demanding more return, due to which the cost of debt also rises. And what is going to happen? Initially, when the KD and KE both are constant, then the overall cost of capital will be falling down as we increase the debt in capital structure. Then it will stabilize a bit, and thereafter it will also be going up. So therefore, there is a point where overall cost of capital is minimum, and at that point the value of firm will be maximum. This is what the theory is. So यहाँ पे we take the example for this. Come to problem number 5. Problem number 5 पे आओ. Problem number 5. क्या दिया हुआ उन्होंने यहाँ पे हमारे को? In
considering the most desirable capital structure for a company, the following estimate of the cost of debt and equity capital after tax have been made at various levels of debt equity mix. तो क्या बोला उन्होंने, हमारे को मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है. मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ होगा, जहां पे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगी, दैट विल बी द मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर. अब वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ मैक्सिमम होगी, जहां पे केओ मिनिमम होगा, क्योंकि ईबीआईटी विल रिमेन कांस्टेंट. तो जहां केओ सबसे कम होगा, दैट विल बी द मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर. देन डेट एज परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट दिया हुआ है, देन कॉस्ट ऑफ डेट दिया है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है. इफ यू ऑब्जर्व दिस डेटा, शुरुआत में डेट इन द कैपिटल इज 0%, मतलब हमने पूरे के पूरे फंड्स किससे रेज करें हैं, इक्विटी से रेज करें. कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 5% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%. देन डेट बढ़ा दिया, 10% कर दिया. कॉस्ट ऑफ डेट अभी भी 5% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी भी 12% ही है. So initially KD and KE are constant. Then इसके बाद में डेट और बढ़ाया, डेट और बढ़ाने से हमारा KD तो अभी भी कांस्टेंट रहा बट KE बढ़ गया. ठीक. देन उसके बाद में KD भी बढ़ने लगा और KE भी इंक्रीज होने लगा. तो हमारे को क्या कंप्यूट करना है, ये डेटा कैसा दिया हुआ है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से उन्होंने हमारे को डेटा दिया हुआ है. इज इट क्लियर? And accordingly we have to compute, क्या बोला है, you are required to determine optimum debt equity mix for the company by calculating composite cost of capital. Composite cost of capital or overall cost of capital is one and the same thing, right? Statement for computation of composite in bracket write overall cost of capital. A statement for computation of composite or overall cost of capital. यहां पे कॉलम्स आ जाएंगे. कैसे कॉलम्स लेंगे, टेक सीरियल नंबर, देन परसेंटेज ऑफ डेट टू टोटल कैपिटल. अगर परसेंटेज ऑफ डेट आ गया तो परसेंटेज ऑफ इक्विटी टू द टोटल कैपिटल आ सकता है. अगर डेट 0% है तो इक्विटी 100% होगा, अगर डेट 10% है तो इक्विटी 90% होगा. नाउ आफ्टर दिस cost of debt and cost of equity is given and we can find out the overall cost of capital or KO here. Now write serial number, then percentage of debt in capital, then percentage of equity in capital, then cost of debt, then cost of equity, and then composite or overall cost of capital. कंपोजिट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये जो परसेंटेज ऑफ डेट इन कैपिटल है ये क्या है, ये है डी. ये परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन कैपिटल है ई. ये कॉस्ट ऑफ डेट है के डी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है के ई एंड ये है के ओ. के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी अपॉन D plus E plus KE into E upon D plus E. KO is equal to KD into D upon D plus E plus KE into E upon D plus E. Now
what we have got here, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, first combination 0% debt, तो इक्विटी बताओ कितना हो जाएगा 100%। कॉस्ट ऑफ डेट कितना दिया हुआ है 5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है 12%। तो क्या हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट कर सकते हैं? इट कैन बी कंप्यूटेड। KO इज इक्वल टू KD इंटू D अपॉन D प्लस E प्लस KE इंटू E अपॉन D प्लस E। KD कितना है 5 इंटू D अपॉन D प्लस E 0 अपॉन 0 प्लस 100 प्लस KE is 12% into 100 upon 0 plus 100. This comes how much? This comes how much? This is coming 12%. Then after this second, हमारा डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर है 10%, तो इक्विटी कितना हो जाएगा 90%। एंड द KD इज हाउ मच? KD इज 5%, KE is still 12%, and then we have to find out the overall cost of capital. Overall cost of capital will be 5 into 10 divided by 10 plus 90 plus 12 into 90 divided by 10 plus 90. This comes how much? 11.30%. 11.30%. Then after this next है नेक्स्ट, अब हमारे पास में इज 20% डेट, 80% इक्विटी, cost of debt is still 5% and cost of equity is 12.5%. Cost of equity is 12.5%. Now what you are going to have here is 5 into 20 divided by 20 plus 80 plus 12.5 into 80 divided by 20 plus 80, कितना आ गया 11%. This is 11%. Then अब इसके बाद में नेक्स्ट वन 30% and 70%. 30% and 70%. Cost of debt is now 5.5%. Cost of equity is 13%. Overall cost of capital will be 5.5 into 30 divided by 30 plus 70 plus 13 into 70 divided by 30 plus 70. बताओ कितना आया 10.75%. This is 10.75%. 10.75%. Then अब इसके बाद नेक्स्ट 40% debt, 60% equity. This is 6%. This is 14%. 6%. This is 14%. And overall cost of capital बताओ कितना आ गया
10.8%. Then after this, next combination is 50% debt, so 50% equity. This is 6.5%. This is 16%. 11.25%. 11.25%. And then we have got 60% debt, so 40% equity, and this comes to, this is cost of debt is 7%, cost of equity is 20%, $12.2%. 12.2%. Hope everybody has got this. Now tell me which is the optimum capital structure. This is 30/70. This is optimum capital structure. This is the best combination we have got because यहाँ पे overall cost of capital is minimum, so यहाँ पे value of firm maximum हो जाएगा. Hope everybody has got this. Right. Combination of combination of 30% debt and 70% equity and 70% equity is best combination as it is having lowest composite or overall cost of capital. Composite or lowest overall cost of capital. बोलो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? होमवर्क इज problem number 1 and problem number 2 at page 42. Means ये जो ऊपर problem number 1 and 2, these are the homeworks. 42 ये पेज नंबर 42 है. ठीक, कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच.